पश्चिम बंगाल आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 58 के सतैया मोड़ पर पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रिक सिटी वार्ड द्वारा लगाए जा रही बिजली के हाई टेंशन टावर के खिलाफ इलाके के लोगों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल काटा है। इस दौरान पुलिस और इलाके के लोगों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। स्थिति को बिगड़ता देख मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। घटनास्थल पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की अगर माने तो जिस जगह पर बिजली का हाई टेंशन टावर लग रहा है वह जमीन 15 कट्ठा है, जो जयश्री बावरी, पुष्पा बावरी, मोनिका बावरी, आदेश बावरी, तपन बावरी के नाम पर है। ऐसे में वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जमीन के मालिक को बिना सूचना व जमीन के बदले बिना क्षतिपूरण दिए जमीन अधिग्रहण कर बिजली के हाई टेंशन टावर लगाने का कार्य चल रहा था, जिसके लिए 2 जेसीबी मशीन भी लगाई गई थी। साथ ही मौके पर कानून व्यवस्था बिगड़ न जाए, जिसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। पुलिस की अगर माने तो वह पश्चिम बर्धमान जिला शासक का निर्देश पर घटना स्थल पर पहुंचे हैं। वहीं एक तरफ जहां बिजली का हाई टेंशन टावर लगाने के लिए बिजली विभाग अपनी एड़ी चोटी एक की हुई है, वहीं दूसरी ओर इलाके में लोग बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जिस मोर्चा के बीच पुलिस और इलाके के लोग आमने सामने हैं। কি হয়েছে হঠাৎ দেখি স্যার পুলিশ প্রশাসন চলে এসেছে আমাদের জমিতে। এই তো দেখেন না কি করেছে দেখুন তো। কি বলছে প্রশাসন? প্রশাসন কিছু বলেনি তো স্যার, বলেছে প্রশাসন বলছে আমাদের কাছে অর্ডার আছে। প্রশাসন শুধু বলছে যে আমার কাছে অর্ডার আছে। জমিটা আমাদের স্যার 5 জনের স্যার। কি নামে আছে? তপন বাউরি আমার নাম, আদেশ বাউরি, তপন বাউরি, পুষ্পা বাউরি, জয়শ্রী বাউরি আর একটা নির্দেশক আছে। কি বলছে প্রশাসন? তো কথা বলছে বলছে আমাদের অর্ডার আর আমাদের অর্ডার দিয়েছে, অর্ডার দিয়ে আমরা ভাঙছি। আমরা চাই এই জায়গাটা আমাদের স্যার ছেড়ে করুন না, যেখানে করুন স্যার এই জায়গাটা ছেড়ে করুন। আপনাদের বহু কষ্টে স্যার জমিটা আমাদের। আপনাদের কাগজপত্র আছে? হ্যাঁ আমাদের কাগজপত্র যদি আছে। কাগজপত্র না থাকতো স্যার এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতাম আপনার সাথে। আমরা কাগজপত্র আছে বলে তো বলছি। তখন লিগ্যাল কাজ আনলিগ্যাল থাকলে দাঁড়িয়ে থাকতাম আমরা এখানে। আপনি ভাবুন না স্যার। আর এত লোক আমাদের পাশে আসছে স্যার, আনলিগ্যাল যদি করতাম আমরা। আপনার নাম? তপন বাউরি আমার নাম। প্রশাসন আমাদের সঙ্গে আনলিগ্যাল করছে। কি হচ্ছে আজকে? কি জমিটা হচ্ছে ভাঙচুর হচ্ছে বিধান নোটিশ ভাঙছে। সরকারের অর্ডার আছে, বলছে ডিএম এর অর্ডার আছে, ওই জন্য ভাঙছে। ডিএম তো আমাদেরকে কিছু নোটিশ দেয়নি, কিন্তু ভাঙবে কেন? আমাদেরকে জানানো দরকার, আমাদেরকে নোটিশ দেওয়া দরকার। যে অর্ডারটা ওরা নিয়েছে আমাদের কই দেয়? ওরা কালকে দিতে পারবে। ঘুরে বেড়াচ্ছে, অর্ডারটা আমাদেরকে তো দেওয়া উচিত ছিল, অর্ডারটা তো আমাদেরকে দেয়নি। জমিটি আপনি কিনেছিলেন? হ্যাঁ। কবে কিনেছিলেন? 1.5 বছর হয়ে গেল, 1.5 বছর আগে কিনেছি আমরা। এখন কি বলছে প্রশাসন? কি বলছে প্রশাসন? বলছে আমরা টাওয়ার বসাবো, আমরা অর্ডার আছে, ডিএম এর অর্ডার আছে, আমরা জমিটা নেব জবরদস্তি। আমাদের কাছে বললো আমাদের কাছে কোনো নোটিশ কিছু আসেনি, কিছু নোটিশ আসেনি, কিছু না। এর আগে একজন জেসিবি নিয়ে এসেছিল ভাঙতে, আমরা সেদিকে ভাঙচুর করতে দিইনি, আটকে দিয়েছিলাম। ওদেরকে অন্যদিকে জায়গা দেখানো হয়েছিল কি আমরা এই পাশে নিয়ে নিই, ওখান থেকে একটু সরে এখানে জায়গাটা নিয়ে হয়ে যাবে বলেছিল, কিন্তু এখন হ্যাক করে দেখছি আজকে আমরা ভাঙচুর করছি। জমিটা কার নামে আছে? জমিটা আমার নাম আছে, পুষ্পা বাউরি। আপনি আপনার জমি কাগজ আপনারা দেখাচ্ছেন না কেন? জমির কাগজপত্র আছে, বাড়িতে নিয়ে আসবো। হট করে এসে কাজ কি করে আসবো? ঘুরে বেড়াবে, মালা বানিয়ে ঘুরে বেড়াবো কি কাগজগুলো? আমরা কাগজগুলো বাড়িতে রাখা থাকে তো। এরা হট করে সকালে পুলিশ সময় দিয়ে হঠাৎ চলে এসেছে। ঘুম থেকে উঠে ছুটে আসছে এখানে, কাগজ বার করবো। পুলিশ বলছে ডিএম এর অর্ডার আছে, আমরা ভাঙবো। পুরো প্রশাসন পুরো ফোর্স নিয়ে এসেছে আমাদেরকে আটকানোর জন্য। এখানে 6,000 মহিলা কাজ করবে, সব গোষ্ঠীদের মহিলারা আমরা সবাই মিলে এক কাছে চাঁদা করে জায়গাটা কিনেছি। পুলিশ বলছে লিগ্যাল, আমরা কি আনলিগ্যাল আছে কি? আমরা সরকার আমাদের যদি কিছু শুনবে না, আমরা সরকারের লোক নাই, আমরা গরিবরা কোনো মূল্য নেই গরিবের। কি নাম আপনার? আমার নাম পুষ্পা বাউরি। কি করার জন্য কিনেছিলেন? 1.5 বছর আগে। কার কাছ থেকে কিনেছিলেন? পবন কুমার নন্দী। আপনারা কজন মিলে কিনেছিলেন? 5 জন মিলে। কে কে? জয়শ্রী বাউরি, আমি, তপন বাউরি, আদেশ বাউরি, পুষ্পা বাউরি, অনিতা সিং। না আপনার কি উদ্দেশ্য নিয়ে কিনেছিলেন? 6,500 লেডিস এখানে সেলাই সেন্টার খুলবো আমরা। সেলাই সেন্টার করার জন্য আমরা এখানে করেছি 6,500 লেডিসকে কাজ দেওয়ার জন্য, আচ্ছা। যেটা মমতা ব্যানার্জি বলেছে যে হ্যাঁ পুরো কুর্তি এলাকা সবাই মিলে এখানে কাজ করে খেতে পারে, স্বনির্ভর গোষ্ঠী করবে। হ্যাঁ, তো আজকে হঠাৎ করে কি হলো যে ভাঙতে হলো, কি কারণ? सुबह सुबह हम लोग अपने घर में
বললেন দিদিকে বলে দিয়ে আমরা কোনো জানি না, হঠাৎ এসে পরে দেখছি যে এখানে ডোজার চলছে। এর আগেও তো একবার ভাঙার হ্যাঁ ভাঙা ছিল, কিন্তু তখন ওনারা ভাঙেনি, আমরা এসে পরে আপনাদের কোনো নোটিশ দিয়েছিল? না না ওনাদের কাছে নোটিশ আছে, কিন্তু আমাদের কাছে কোনো বিনা নোটিশকে তোড়া পুলিশ গেছে। বারবার আপনাকে বলছিল যে আপনাদেরকে মিটিং এ ডাকা হয়েছিল, হ্যাঁ। এই বিষয়টা আমাদের মিটিং আমাদেরকে ডাকেনি স্যার, আমরা নিজে থেকে कम से গেছি। कम नोटिस শোনার জন্য। मिलना चाहिए ना। আমাদেরকে নোটিশ, এটা কোনো নোটিশ দেয়নি যে আপনাদেরকে মিটিং আমরা ডাকছি বা কিছু, আমরা নিজে থেকে গেছিলাম শোনার জন্য যে কী বলছে। তো আমি এখানে বক্তব্য রেখেছিলাম, আমি বলেছি এখানে স্যার এই জমিটা ছেড়ে যদি এই সাইডে বসানো হয় তাহলে কি কোনো আপত্তি আছে? বললো না। এনারা বললো আমরা ভেরিফাই পাঠাবো, সব কিছু দেখে পরে ওরা সব করে গেছে, বলছে হ্যাঁ হয়ে যাবে। তখন ডিএমও বলেছে যে হয়ে যাবে, কিন্তু এখন কি হলো জানি না, আজ থেকে ভাঙাভাঙি চালু হয়ে গেছে। আপনারা এখন কি কাজ বন্ধ করলেন? হ্যাঁ, আমরা এখন ডিসি স্যার কি বললেন আপনাদেরকে? পুলিশ কমিশনার স্যার কি বললেন? বললো যে আপনারা যত করুন কিন্তু এখানে আটকাতে পারবেন না, এখানে কাজ হবে আপনাদেরকে ডেকেছে না, আমাদের কথা বলার জন্য? কিছু বলে না। তা আজকে কিভাবে কাজটা বন্ধ হলো? আজকে আমরা ওই যে ওইখানে পুলিশ বলে গেল যে আজ আমরা চলে যাচ্ছি, আজ নিজে চলে থেকে যাচ্ছি, তোমরা কিন্তু আলোচনা করো। অন্যদিন আলোচনা আমরা করবো, আরো আমরা অন্যদিন আসবো, এসে পরে করবো এখানে। স্যার আমরা বলছি তাহলে কি আমাদের কোনো প্রশাসন নেই? ওরা মানে সরকারের জন্যই প্রশাসন, আমাদের কিছু নেই। আপনার নাম? জয়শ্রী বাউরি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। भारी बारिश के परिणाम स्वरूप जब क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पानी में डूबे हुए हैं, प्रशासन के अधिकारी अपशिष्ट क्षेत्रों में व्यस्त है और उस अवसर पर कई बेईमान लोग कांगसा गोपालपुर पंचायत क्षेत्र में मिट्टी की तस्करी कर रहे हैं। कांगसा गोपालपुर पंचायत के मुखिया को भी इसी तरह की लिखित शिकायत मिली है। गोपालपुर पंचायत के मुखिया श्रीनंद राय महंती ने मामले की जानकारी कांगसा भूमि कार्यालय पदाधिकारी को दी है। कांगसा भूमि विभाग के अधिकारी मंजू कांजीलाल और उनकी टीम ने छापेमारी कर मिट्टी काटने वाली जेसीबी मशीनों के साथ 3 मिट्टी लोड करने वाले ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। इसके साथ ही शनिवार की सुबह 24 घंटे की निगरानी में मिट्टी लदे डंपर को जब्त कर लिया है। भूमि विभाग के राजस्व अधिकारी कल्याण मित्रा और मिनल बास्के ने शनिवार को काक्सर के जटगरिया से पानागढ़ जा रहे मिट्टी से लदे एक डंपर को रोका, जिसके पास कोई वैध चालान नहीं था। ड्राइवर फरार है। कांगसा के एक तरफ अजय नदी और दूसरी तरफ दामोदर नदी पर लगभग अवैध रूप से बालू तस्करी की शिकायत रहती थी, लेकिन अब मिट्टी की तस्करी भी सक्रिय हो गई है, जिसे इस भूमि विभाग की निगरानी से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। हालांकि भूमि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 24 घंटे निगरानी की जा रही है और ऐसे अवैध मिट्टी तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। কাকসা দপ্তর দ্বারা বিগত 7 দিন ধরেই আমাদের এই অভিযান চালানো হচ্ছে। 24 ঘন্টা জুড়েই আমরা এই অভিযানটা চালাচ্ছি, পালা করে চালাচ্ছি, টিম ওয়াইজ আমরা চালাচ্ছি। বিগত 2 দিন আগে একটি জেসিবি সমেত 3টি মাটির ট্রাক্টর এবং বালি আর একটি বড় ডাম্পার, সেটি আগামীকাল ধরা হয়েছে এবং আজকেও ভোর 5:30 নাগাদ একটি মোরামেল গাড়ি ধরা হয়েছে। এই এখন সেটাকে সেফ কাস্টাডি আমরা করতে যাবো আর এরপর অভিযান চলবে। বলছি এগুলো কি এই কাকসা ব্লক থেকে উঠছে না অন্য ব্লক থেকে বা অন্য জেলা থেকেও আসছে? না, আজকে যেটা শুনতে পারলাম এই ড্রাইভার উনি বললেন যে এটা নাকি বীরভূমের ওই দিক থেকে আসছে, জায়গার নাম ঠিক বলতে পারলেন না। আমরা একে রাস্তায় ধরতে পেয়েছি, তার কাছে কোনো বৈধ কাগজপত্র ছিল না, এই কারণে তাকে আমরা এখন এই পার্কিংয়ে রেখে সেফ কাস্টাডি করতে থানায় যাব। আচ্ছা, আপনার নামটা? আমার নাম মৃণালকান্তি বাস্কে, বর্তমানে আমি আড়াই হিসাবে বিএলআর কাকসা দপ্তরে কর্মরত। আচ্ছা, আপনি? আমার নাম হচ্ছে কল্যাণ মিত্র, আমিও মোবাইল দিকে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ईसीएल में एमडीओ मॉडल एवं रेवेन्यू सायरिंग के माध्यम से कोयला खदानों को निजीकरण करने की साजिश तथा 26 श्रम कानूनों को खत्म कर मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिता केंद्र सरकार द्वारा लागू करने के खिलाफ शनिवार को ईसीएल 7 ग्राम श्रीपुर एरिया के सिवडंगा एसएसआई कोलियरी में सीएमएसआई द्वारा पीठ सभा का आयोजन किया गया। पीठ सभा के दौरान सीटू के एरिया सचिव शीतल चक्रवर्ती ने कहा कि एमडीओ हो या रेवेन्यू शेयरिंग, ईसीएल प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कोयला खदानों को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार निजीकरण को बढ़ावा देना चाह रही है, जिससे आने वाले समय में श्रमिकों को काफ़ी समस्या से भुगतान पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोयला उद्योग में ज़्यादातर हादसों में मरने वाले ठेका श्रमिक होते हैं,
लेकिन उनके परिजनों को ईसीएल प्रबंधन द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है। वर्तमान समय में कोयला उद्योग भारत सरकार के अधीन है, लेकिन जब पूरी तरह से कोयला उद्योग का निजीकरण हो जाए तो यह काफ़ी गंभीर मसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ सीटू की ओर से लगातार आंदोलन कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोयला उद्योग के निजीकरण की साजिश केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिससे कोयला उद्योग को निजी हाथों में सौंपा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूर विरोधी कानून लागू कर श्रमिकों का हक मारना चाह रही है, जो कभी होने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान सीटू के शिवडंगा एसएसआई कॉलियरी के अध्यक्ष राम कुमार नोनिया, सचिव बीरेंद्र महतो, सीटू नेता रजाक मियाँ, विनोद यादव, मनोज लाला, लालन यादव आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। एमडीओ रेवेन्यू शेयरिंग दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। एमडीओ रेवेन्यू शेयरिंग लागू करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एमडीओ रेवेन्यू शेयरिंग लागू करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और मैनेजमेंट दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। कोयला बेचने वाला मैनेजमेंट दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। कोयला बेचने वाला बीजेपी गवर्नमेंट दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। कोयला बेचने वाला बीजेपी गवर्नमेंट दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। इनके लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एमडीओ लागू करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेवेन्यू शेयरिंग लागू करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खनि को बेचना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खनि का बेसरकारीकरण करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनके लिए जो भी हो, जो कुछ हो, जो कुछ हो। इनके लिए जो कुछ हो, जो कुछ हो, जो कुछ हो। जोर जुल्म को टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म को टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। दुनिया का मजदूर है, हो, हो, हो। दुनिया का मजदूर है, हो, हो, हो। इनके खिलाफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनके खिलाफ जिंदाबाद। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के मौके पर आज रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। शहीद यादगार समिति द्वारा हिस्से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ पर आसनसोल के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, रानीगंज के पूर्व विधायक रुनु दत्ता के अलावा शहीद यादगार समिति के तमाम सदस्य उपस्थित थे। यहाँ पर सभी ने शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माला अर्पण किया। वक्ताओं ने कहा कि जिस देश प्रेम के लिए शहीद भगत सिंह ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, आज फिर से उस देश प्रेम को जगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज भी शहीद भगत सिंह के आदर्श उतने ही प्रासंगिक है जितना कि आज़ादी के लड़ाई के दौरान थे। उन्होंने साफ कहा कि नई पीढ़ी को शहीद भगत सिंह के आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है, ताकि वह एक उज्जवल राष्ट्र और समाज का निर्माण कर सके। তো কাদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে এবং উদ্দেশ্যটা কি কি এখানে তাদের তুলে ধরা হয়েছে? আচ্ছা, এই সম্মেলনটা আমরা করছি যারা বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক রিটায়ারিজ আছেন, রিটায়ারি এবং পেনশনার্স তাদের পক্ষ থেকে এটা করা হচ্ছে। কেননা এই পেনশন আমাদের ছিল না আগে, এটা কমার্শিয়াল ব্যাংকে ছিল। অনেক আন্দোলনের ফলে আমরা পেনশন পেয়েছি এবং সেটাও কিন্তু একবারই ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাংক হয়নি। তার জন্য অনেক সংগ্রাম আমাদের করতে হয়েছে। আমাদের সেই সংগ্রাম সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আমাদেরও কমার্শিয়াল ব্যাংকের মতো 1/11/1993 থেকে পেনশন দেওয়া হবে। সেই পেনশনের প্রক্রিয়া চলছে, এখন সেটা শেষ হয়নি। এছাড়াও আমাদের অনেক দাবি দেওয়া রয়েছে, সেই দাবি দেওয়াগুলো এখনও পূরণ হয়নি, যেটা ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাংকের মতো হয়নি। যাই হোক, সেটার জন্য আমাদের এই যে লড়াই চলছে এবং আজকে আমাদের এটা ৪র্থ ত্রিবার্ষিক সম্মেলন। আমরা আমাদের এই সংগঠনের পথ চলা শুরু করেছিলাম 26শে আগস্ট 2012 সাল থেকে এবং সেখান থেকে আজকে এটা ৪র্থতম ত্রিবার্ষিক সম্মেলন হচ্ছে এই বাঁকুড়া শহরে বাঁকুড়া রিজিওনাল কমিটির উদ্যোগে। এটা একটা রিজিওনাল কমিটি, মূলত এটা আমাদের স্টেট লেভেলের স্টেট কমিটি আছে, বিজিবিবি পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন, বিজিবি রিটায়ারি স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন এবং আমাদের ন্যাশনাল লেভেলে আছে NFRBS।
ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ আরআরবি স্টাফ এই আছে, এইভাবেই আমাদের চলছে। এটা গতবার গুয়াহাটি কনফারেন্স 2021 সালের কনফারেন্সে আরআরবির 3টে শাখা, একটা হচ্ছে ওয়ার্কম্যান শাখা, একটা হচ্ছে অফিসার শাখা এবং একটা রিটায়ারি শাখা, এই 3টে শাখা একটা ছাতার তলায় নিয়ে এসে করা হয়েছে AIRRBA। সেই AIRBর উপর নেতৃত্ব দিচ্ছে, এই 3টে অ্যাসোসিয়েশনকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তার আমরা একটা ডিস্ট্রিক্ট ইউনিট মাত্র। এখানে আমাদের যে মানে দাবি দেওয়া ইত্যাদি যেগুলো আছে সেগুলো রিজিয়ন লেভেলে হওয়ার নয়, এগুলো সবই হচ্ছে সেন্ট্রাল লেভেল। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अंडाल ब्लॉक के उखरा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से उखरा बाजार में सभी दुकानों को ट्रैफिक की ओर से जो दिशा निर्देश मिली है उसकी पालन करने के लिए सभी दुकानदारों को जागरूक किया गया। इस दौरान उखरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनोज सराफ ने कहा कि सामने दुर्गा पूजा है, इसलिए लोग अब खरीदारी करने के लिए बाहर आएंगे। इसलिए हम सब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने उखरा बाजार में स्थित सभी दुकानों के मालिकों से निवेदन किया है कि वह अपने दुकान के बाहर बाइक, साइकिल या किसी भी तरह का फालतू सामान न रखें, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत आए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग ऑनलाइन से ही ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, जिससे दुकानदारों में खरीदारों की कमी हो गई है। इस दौरान उखरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव नवीन गुप्ता, हरिबंधु जाना, नरेश दास, सोमनाथ पाल, शंकर शर्मा, सीताराम बर्नवाल आदि उपस्थित रहे। मार्केट में एक्चुअल उतनी भीड़ तो है नहीं, अब पहले जैसा मार्केट भी नहीं रहा। ये ऑनलाइन के चलते हम लोग का मार्केट बहुत नुकसान हुआ है मार्केट का, और पहले जैसे दुकानदारों की बिक्री भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने तरफ से प्रिकॉशन ले रहे हैं। उसके तहत हम लोग मार्केट में निकल करके दुकानदारों को ये गाइडलाइन दे रहे हैं कि आप जो बाइक वगैरह है वो साइड करके लगाइए, और एक आध दो दुकानदार जो है वो देन वेन पे थोड़ा मोड़ा अगर कुछ सामान रखे हुए हैं, 1-2 है, वैसे ज़्यादा नहीं है, तो उन लोग को बोल रहे हैं कि भाई वो सामान को आप अंदर रखिए, जो आपका दुकान है उसके परमिशन में रखिए, और बाइक वगैरह को साइड करके रखिए, ताकि आम जन जो है, जो आने जाने वाले हैं, आम नागरिक आम पब्लिक जो है, उनको कोई असुविधा ना हो। यही हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आपका परिचय? मनोज सराफ, प्रेसिडेंट उखरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 19वें दीक्षांत समारोह में कुल 1148 स्नातकों, 776 बीटेक, 8 दोहरी डिग्री, 12 इंटीग्रेटेड MSc, 243 MTech, 17 MBA, 86 MSc और 6 MSW डिग्री को शैक्षणिक वर्ष के लिए डिग्री प्रदान की जाएगी। जून 2023 को समाप्त होने वाले और जून 2024 को समाप्त होने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिए कुल 1150 स्नातकों, 410 बीटेक, 9 दोहरी डिग्री, 6 एकीकृत MSc, 192 MTech, 29 MBA, 97 MSc, 7 MSW डिग्री को डिग्री प्रदान की जाएगी और कुल 156 डिग्रियां प्रदान की जाएगी और 76 स्वर्ण पदक और 4 सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इस दीक्षांत समारोह में 3 पूर्व छात्रों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियां के लिए विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सुकांत मजूमदार, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, इस मौके पर मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत और रूस के डिप्टी CEO संजीव कुमार जोशी सम्मानित अतिथि होंगे। जोशी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक भी है। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार व OSD प्रमुख कार्यालय, मिसाइल और सामरिक प्रणाली और अतिरिक्त निदेशक मिसाइल DRDO अध्यक्ष के तकनीकी सलाहकार और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे। एच ने नीति निर्माण, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने, मिसाइल सिस्टम सिफर में आत्मनिर्भरता, साइबर स्पेस प्रौद्योगिकी को मजबूर करने के महत्वपूर्ण योगदान दिया। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, OSD प्रमुख कार्यक्रम कार्यालय, मिसाइल और सामरिक प्रणाली और अतिरिक्त निदेशक मिसाइल DRDO अध्यक्ष के तकनीकी सलाहकार और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे। एच ने नीति निर्माण, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने, मिसाइल सिस्टम सिफर में आत्मनिर्भरता, साइबर स्पेस प्रौद्योगिकी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
मुझे ऐसा लगता है आज के समय में जब पूरा देश एक नए ट्रांजिशन से गुजर रहा है, मुझे ऐसा लगता है जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, यंग जनरेशन की बात करते हैं, तो यंग जनरेशन नए नए स्टार्टअप्स अलग अलग फील्ड्स में, रक्षा के क्षेत्र में है या किसी और क्षेत्र में है, अलग अलग स्टार्टअप्स आ रहे हैं। यंग जनरेशन में एक अलग एनर्जी है, अलग ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा और इसके साथ दीक्षांत समारोह में आना मुझे हमेशा ही एक यंग जनरेशन के साथ मिलना भी अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये NIT दुर्गापुर से पास आउट जितने भी बच्चे हैं वो अपना मुकाम हासिल करेंगे। मुझे बताया गया डायरेक्टर NIT दुर्गापुर के द्वारा कि यहाँ पर सबसे अच्छा पे पैकेज 53 लाख का एक मिला है इस बार, और मिनिमम भी जो गया था वो भी उसमें पहले 4 लाख था, अब 8 लाख हो गया। तो कहने का मतलब है गैप कम हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब उद्योग यहाँ पर बढ़ेंगे, देश में काफ़ी आत्मनिर्भर भारत और ये बहुत सारे हमारे स्कीम चल रही हैं सरकार की, तो मुझे लगता है कि और इनटेक होगा इंजीनियर्स का NIT दुर्गापुर से। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक कंटेनर में लदे 9 नई टोटो और 5 इलेक्ट्रिक बाइक जलकर राख हो गई। घटना शुक्रवार की रात रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र के मंगलपुर मोड़ के समीप पेट्रोल पंप के पास घटी। ड्राइवर और खलासी एक ढाबे पर खाना खा रहे थे, तभी अचानक उन्हें अपनी गाड़ी के अंदर आग की लपटें दिखाई दी। फिर जब वाहन हटाया जा रहा था तो आग तेजी से फैल गई और कंटेनर के अंदर सभी टोटो और सभी ई-बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां जलकर खाक हो गई। फिलहाल दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर नेशनल हाईवे के किनारे खड़ा था। इस घटना में ट्रेलर के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मालूम हो कि ये गाड़ियां कोलकाता से उत्तर प्रदेश डिलीवरी के लिए ले जाई जा रही थी। इसी बीच ये हादसा हो गया। ये खाना खाने होटल में गाड़ी लगा के खाना खाने गए, फिर वहाँ से जब खाना वाना बन गया और खाना ऊपर किया तो गार्ड आके बोले कि बोलू आपकी गाड़ी में से चिंगारी निकल रहा है। फिर वो चिंगारी हम लोग देखे तो वो आग लग चुका था। कहाँ खाने बैठे थे? यही होटल में बैठे। अच्छा। तो वही जहाँ चिंगारी देखे तो आग लग चुका था। फिर आगे पंप पर आए से पंप पर मदद मिलेगा, बाकी पंप पर मदद नहीं मिला। आगे पंप वाला ने बोला आगे कर लो पंप उठ जाएगा। तो हम लोग आगे किए, तब तक आग पूरा हो चुका था। तो हम लोग कैसे करके केबिन बचा लिए और बचा लिए, उसके बाद ये सब जल गया। कितना ये था? कहाँ से आ रहा था? ये अल्टो आ रहा था कलकत्ता से। और टोटो सब कलकत्ता से? कलकत्ता कहाँ? कलकत्ता ये तो मेरे को पता नहीं है, बाकी कलकत्ता से आया। कलकत्ता से आ रहा था। कहाँ ले जा रहे थे आप? यूपी ले जा रहे थे, यूपी टाउन में ले जा रहे थे हम लोग। कितना टोटो है इसमें? 9 टोटो है और 5 स्कूटी है। स्कूटी भी है? स्कूटी है, इलेक्ट्रिक। सब इलेक्ट्रिक वाला? किस कारण से लगा, कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला, ऐसे ही हम लोग जैसे खाना खाने गए, खाना खा के आए तब तक ले आग लग चुका था। अच्छा, तो फायर ब्रिगेड आया? फायर ब्रिगेड आए, मतलब जो हम लोग जितना हम लोग को मदद हुआ से हुआ, तो लास्ट में फायर ब्रिगेड आए तब तक ले जल गया था। लास्ट में आया था तब तक ये हम लोग एक हवा बचा पाए बस। एक बचा पाए, वो भी जल गया। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार हुआ। राजकुमार तिवारी। कहाँ का रहने वाला है? हम लोग बिहार मुजफ्फरपुर। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।